ਨੂੰ 'ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੈਂਸ਼ਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤ। ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ, ਨੇੜੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ। ਨੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ SMS ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਵੀ ਛੁੱਟੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ NIA ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾ ਅਤੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਵੀ 2 ਘਰਾਂ ਤੇ ਰੇਡ। NDA ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤਿਆਗ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 22 MLA ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਡਿਪਟੀ CM ਦਾ ਅਹੁਦਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਲਿਆਏਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਰਨਗੇ ਪੇਸ਼। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ। ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਪੁਰ ਮੰਡੀ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਾਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ। ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ 'ਚ ਮੁੜ ਚੱਲੇਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ। 에ਅਰਪੋਰਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਢਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨੋਟਿਸ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਾਣਾ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਗੈਂਗ ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਠਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ। ਪੁਲ ਨਿਰਮਾਣ ਵੇਲੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਰਡਰ ਲਾਂਚਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, 16 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। ਮਲਬੇ 'ਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਬੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत हरियाणा तो वड्डी खबर दे नाल करदे हां। हरियाणा दे नूंह दे विच विश्व हिंदू परिषद की यात्रा निकल रही सी, लेकिन उस वेले पत्थरबाजी शुरू हो गई। दो भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ हिंसा भड़की है, जिस तो बाद हरियाणा च जबरदस्त टेंशन है। नूंह दे विच करफ्यू लगा दिता गया है। नेड़ले ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ धारा 144 लगा दी गई है। ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ SMS ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੇ ਪਲਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਲਰਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਫਸਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ। 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਨ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਹੈ, ਚੱਪੇ-ਚੱਪੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਦਰਜਨ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ DSP ਦੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਹੈ 2 ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ यात्रा निकल रही सी, उस वेले अफवाहां फैलियां ने, जिस तो बाद इस यात्रा के उत्ते पत्थरबाजी की गई। बहुत सारे सवाल इस घटना नूं लैके खड़े हो रहे ने। पुलिस उस वक्त कित्थे सी जदों ये अफवाहां फैल रही सी कि खुफिया तंत्र काम नहीं सी कर रहा, या किस तरीके दियां पुलिस दे कोल जानकारियां सी, इस सब नूं कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सकिया। बहुत सारे सवाल ने। पुलिस दे वल्लों जदों ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ, ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। SMS ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 लगाई गई है। अंकित दुदानी मेरे सहयोगी और जानकारी के लिए जुड़े ने। अंकित, क्या कुछ इस वक्त की स्थिति है, क्या कुछ जानकारी मेवात और आसपास के इलाकों के बारे में?
बिल्कुल, जो स्थिति है वो अभी कहीं ना कहीं ठीक है और शांतिपूर्ण है, क्योंकि अभी 11:30 बजे बैठक बुलाई गई है दोनों पक्षों की, और उसमें जिला उपायुक्त रहेंगे, जो बीजेपी के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, वो सब लोग भी मौजूद रहेंगे, और जाकिर हुसैन हैं, अल्पसंख्यक मोर्चा के बीजेपी के पदाधिकारी हैं, वो भी मौजूद रहेंगे। कहीं ना कहीं एक शांति बनाने की कोशिश की जा रही है, और वहाँ अभी अगर टेंशन की बात की जाए तो वहाँ मामला शांत है, और अभी पलवल की बात की जाए, फरीदाबाद, गुरुग्राम, सभी जगह कोई अभी घटना नहीं हो रही है, कोई ऐसी आगजनी और या फिर पथराव की कोई घटना नहीं है। सभी जगह अभी शांति बनी हुई है, और पुलिस भी लगातार पूरी तरह से चौकन्नी है। सीआरपीएफ की जो यूनिट्स हैं वो लगाई गई हैं, जो और सारी पुलिस बल पूरा मौजूद है, दूसरे जिलों से भी पुलिस बल मंगाया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी जो बातचीत के जरिए ही रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है, शांति बनाने की कोशिश की जा रही है। इंटरनेट सेवाएं जो हैं वो पलवल की बंद कर दी गई हैं, फरीदाबाद की बंद कर दी गई हैं, और नूह की बंद कर दी गई हैं। तो वहाँ भी पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो इंटरनेट सेवाएं हैं वो बंद कर दी गई है। आज जो कॉलेज और स्कूल हैं वो भी पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। आज हालांकि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की जो परीक्षाएं होनी थी वो भी रद्द कर दी गई हैं। तो पूरी तरह से एहतियात बरत रहा है प्रशासन भी, और कोई भी अप्रिय घटना ना हो इसलिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। तो प्रशासन जहां अपील कर रहा है वहां नेता अपील कर रहे हैं, मुख्यमंत्री खुद अपील कर रहे हैं, गृह मंत्री अपील कर रहे हैं लोगों से कि आपस के भाईचारे को ना बिगड़ने दें। क्योंकि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कोई ऐसी घटना देखने में जल्दी से आती नहीं है, क्योंकि हरियाणा में जो आपस में भाईचारा है वो काफी बन के रहता है। लेकिन अभी जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद की ओर से और एक जुलूस निकाला जा रहा था, और उस जुलूस की इंटीमेशन पुलिस को 6 महीने पहले दे दी गई थी कि इस तरह का जुलूस निकाला जाएगा, इस तरह की यात्रा निकाली जाएगी, धार्मिक यात्रा निकाली जाएगी, और उसमें कोई ऐसा उपद्रव ना हो उसके लिए पुलिस प्रबंध करे। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पुलिस के प्रबंध जो थे वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं थे और कम साबित हुए, और इस वजह से ये घटना हुई। और कोई ना कोई खुफिया जो तंत्र है उसमें भी कहीं ना कहीं पुलिस के खुफिया तंत्र में भी कमजोरी नजर आई, क्योंकि अगर इस तरह से पहले दूसरे समुदाय के लोग अगर पहले से ही प्लान करके और इन चीजों को अंजाम देने की सोच रहे थे, तो जो खुफिया तंत्र है, खुफिया पुलिस है, वो कहाँ थी? क्यों नहीं उन्होंने चेताया और क्यों नहीं बताया, जिससे कि समय रहते इसके ऊपर काबू पाया जा सकता था। तो अब कहीं ना कहीं जब घटना हो गई है, और घटना होने के बाद 2 जो होमगार्ड हैं उनकी डेथ हो गई है, और भी काफी गाड़ियों का नुकसान हो गया है, और धार्मिक स्थानों को फूंक दिया गया है, तो कहीं ना कहीं एक जान माल का नुकसान तो हुआ है। लेकिन अब भी अगर शांति बन जाती है तो वो गनीमत है। जी जी जी। कोई कैजुअलिटीज के बारे में डेटा आपको मिला है अंकित? 2 होमगार्ड जवानों की मौत हुई है, ये हमें पता चल रहा है। 10-15 पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। इसके अलावा क्या कुछ कोई और जानकारी मिली है? कोई पुलिस जानकारी दे रही है? आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है मेरे को। जी अंकित, आवाज आपको मिल रही है? तो कोशिश कर दी मेरे सहयोगी दे नाल गलबात दोबारा करन दी। अंकित, आवाज आपको मिल रही है? बहुत कम आवाज मिल पा रही है। आप हाँ जी, आवाज ही नहीं आ रही यार, आवाज तो पूरी दो ना यार। जी जी, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। 20 ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਗਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। SMS ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰਫਿਊ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਈ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 10 ਤੋਂ 15 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ, ਇੱਕ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕੁਤਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੋ ਅਫਵਾਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅੰਕਿਤ ਉਦਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ जुड़े हुए हैं। अंकित, आपको आवाज मिल रही है साथ? ਤਾਂ अंकित ਨਾਲ भी गलबात करने की कोशिश करांगे। मेरे सहयोगी धर्मवीर शर्मा जुड़ चुके हैं। धर्मवीर, अभी की क्या स्थिति है? बिल्कुल, देखिए स्थिति जो है अभी नियंत्रण में है।
कल के मुकाबले अगर हम बात करें तो मेवात में कर्फ्यू जो है वो अभी भी लगा हुआ है। इंटरनेट सेवाएं जो है वो बाधित कर दी गई हैं। गुरुग्राम के मानेसर इलाके में भी जो इंटरनेट की सेवाएं हैं उनको बंद कर दिया गया है। इसके अलावा आज सुबह जो एक धार्मिक स्थल पर एक जो आगजनी घटना हुई थी उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। इसकी पुष्टि गुरुग्राम पुलिस ने कर दी है। तो अब तक कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत हुई है, जिसमें कि 2 होमगार्ड थे जो कि खिड़कीदौला थाने में तैनात थे और एक युवक जो कि धार्मिक स्थल के अंदर मौजूद था उसकी मौत हुई है। हालांकि इन सब खबरों का खंडन किया है गुरुग्राम पुलिस ने कि किसी मौलवी की हत्या की गई है या उसे जिंदा जलाया गया है। इस तरह की कोई घटना नहीं हुई है और इसको लेकर के गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उनके ऊपर कम से कम लोग ध्यान न दें। तो इसलिए यही एक वजह रही है कि जो इंटरनेट की जो सेवाएं हैं उनको बाधित किया गया है, चाहे वो गुरुग्राम हो, चाहे वो मेवात का इलाका ही क्यों ना हो या फिर फरीदाबाद का इलाका क्यों ना हो। धारा 144 जो है कल ही लगा दी गई थी। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जो जवान हैं उनको मेवात भेजा जा चुका है, वो मेवात में इस वक्त तैनात है। इसके अलावा कई जिले तो आज अभी तक की स्थिति नियंत्रण में है। नजरें सबकी 11:30 बजे की एक मीटिंग के ऊपर है जिसमें कि दोनों समुदाय के लोगों को जो उपयुक्त है मेवात के उन्होंने बुलाया है, उनके साथ एक बैठक होगी और उस बैठक में क्या कुछ निकलता है इस पर भी नजर रहेगी। जी धर्मवीर, जैसे अंकित बता रहे थे कि ये जो जुलूस निकाला जा रहा था, यात्रा निकाली जा रही थी, उसकी इंटीमेशन पुलिस को 6 महीने पहले से थी। सुरक्षा प्रबंधों के लिए भी कहा गया था, लेकिन कहां पर फिर ये जो चीजें हैं इस तरीके से बिगड़ी हैं? क्या उस तरीके के प्रबंध नहीं थे? आप बिल्कुल देखिए, जो ये यात्रा निकाली गई थी इसकी बाकायदा परमिशन जो है वो ली गई थी। इसकी जानकारी ना सिर्फ गुरुग्राम पुलिस को थी बल्कि मेवात पुलिस को भी थी, क्योंकि ये यात्रा गुरुग्राम से निकली थी और मेवात इसको पहुंचना था। तो दोनों ही जिलों की पुलिस को इसकी सूचना थी, पहले से सूचना थी। लेकिन पिछले 2 दिन में जिस तरह की चीजें हुई सोशल मीडिया के ऊपर, जिस तरह से मोनू मानेसर ने ये कहा कि वो इस यात्रा में शामिल होगा, उस दूसरे तरफ से जो लोग हैं उनका रिएक्शन जब आया कि मोनू मानेसर को हम इस यात्रा में अगर वो शामिल होगा तो उसे वापस नहीं जाने देंगे, तो इन सब चीजों को लेकर के हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेवात पुलिस का जो इंटेलिजेंस था वो फेलियर रहा है। क्योंकि इंटेलिजेंस इस चीज के ऊपर नजर नहीं रख पाया कि सोशल मीडिया में क्या कुछ चल रहा है, सोशल मीडिया में किस तरह से दोनों पक्ष एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं। शायद इस पर खास ध्यान नहीं दिया गया और यही एक बड़ी वजह रही कि चूक हुई कहीं ना कहीं इसमें पुलिस के प्रबंध में, और ये इसकी वजह से ये बड़ा एक जो कल की जो घटना है वो घटी है। हालांकि इसमें जो ये जुलूस निकल रहा था तब यही अफवाह फैलाई गई उस वक्त की मोनू मानेसर इस यात्रा में शामिल है और उसके बाद ही ये पत्थरबाजी शुरू हुई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया में पिछले 2 दिन से जो कुछ भी चला उस पर शायद पुलिस का ध्यान ठीक से नहीं रहा, या फिर हम यूं कहें कि ध्यान दिया नहीं गया, जिसकी वजह से ये हालात जो है बिगड़ गए। जी शुक्रिया धर्मवीर पूरी जानकारी के लिए। तो बहुत सारे सवाल ने ना घटनावां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, लेकिन फिलहाल जो प्रायोरिटी है सरकार दी, पुलिस प्रशासन दी कि शांति बने किसी तरीके दे नाल। दोवां भाईचारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ मीटिंग भी रखी गई है। उस मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ कोशिश की जाएगी कि दोवां भाईचारिਆਂ ਨੂੰ बिठा के गलबात होवे, ਜਿਹੜਾ इस तरीके की स्थिति बनी है उस दे नाल निपटिया जा सके, शांति बहाल कराई जा सके। नूंह दे विच कर्फ्यू लग चुकिया है, इंटरनेट SMS सर्विसेज बंद ने, कई होर इलाकों के विच भी धारा 144 लगा दी गई है। गुरुग्राम, फरीदाबाद ते पलवल दे विच भी अलर्ट है। पुलिस दे वल्लों फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। संवेदनशील इलाकों के विच पैरामिलिट्री दीयां 20 कंपनियां तैनात कीतियां गईयां ने। इस पूरी घटना के दौरान 2 होमगार्ड जवानों की मौत हो गई है। 10 तो 15 के करीब पुलिसकर्मी ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। बहुत सारिया अफवाहां भी फैल रही ने जिस नूं लैके डिप्टी कमिश्नर लोगों को अपील कर रहे हैं कि कोई भी जिहड़ी जानकारी है पुख्ता जानकारी तो बिना किसी अफवाह ते भरोसा ना करो, क्योंकि जिहड़ियां चीज़ां वापरियां ने वो भी जो हुण तक की जानकारी है अफवाहां के कारण ही यह हिंसा भड़की है। के लिए जो है इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं और हम उसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ वाले जो है काफी वोटर्स भी लगाए ताकि कोई भी काफी जो शरारती तत्व है उस पर हम रोकना बना सके। एक हमने प्रिलिमिनरी बैठक आज भी की थी और दोनों पक्षों के जो करीब मौजूद लोग हैं हमारे जिले में उन सभी को हमने बुलाया है। सबसे हम शांति की अपील करेंगे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो भी घटी है, पर हमारी सबसे अनुरोध रहेगा कि शांति बनाए। जितने भी श्रद्धालु थे जो 2-3 जगह फंसे थे सबको जो है बिना किसी हानि के जो है सबको इवैक्यूएट कर दिया गया है। सभी पुलिस लाइन में बसेस का इंतजाम कर दिया गया है। जो भी आसपास के जिले वाले हैं वहाँ सबको आज रात को ही जो है ड्रॉप किया जाएगा। कैजुअलिटी की फिलहाल ये की कैजुअलिटी की रिपोर्ट है। बाकी जितने भी इंजर्ड हैं, जो भी कोई माइनर इंजरी है या मेजर इंजरी है उसका मार्किंग कर रहे हैं, फिर हम आपको जल्दी शेयर करेंगे।
अंदर है और जो भी उसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। कुछ कैजुअलिटी भी हुआ है। हाँ, कुछ कैजुअलिटीज की भी रिपोर्टिंग है और दोस्त के भी कुछ मेंबर्स को चोट लगी है और आपस में भी जो झगड़ा हुआ था उससे भी लोगों को चोट लगी है। क्या आप कुछ संख्या बता पाएंगे सर, पुलिस फोर्स की तरफ से या फिर आम नागरिकों की? अभी संख्या थोड़ी देर बाद हम कर रहे हैं, उसकी जो आकलन को भी लगी है अलग अलग हॉस्पिटल में जो भर्ती हैं वहाँ से हम बताए देखिए पूरा प्रशासन इसमें एकजुट होकर इस स्थिति को नियंत्रण करने में पूरी तरह से लगा हुआ है और अभी स्थिति कंट्रोल में है। अभी हमारा मेन सभी लोगों से यही अपील है कि जो भी सामाजिक और मजदूर लोग यहाँ के हैं वो लोग इस चीज़ के ऊपर अपना ध्यान रखें और जो भी अपने आसपास के जो लोग हैं इस स्थिति को खराब करने में लगे हुए हैं उनके ऊपर नियंत्रण लगाएं। और हम अतिरिक्त पुलिस भिजवा रहे हैं। हमारा प्राइमरी जो उद्देश्य है वो है वहाँ पर शांति कायम करना और ये जो वहाँ पर हालात हो रहे हैं उसको कंट्रोल करना। क्या कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई है? काफ़ी गाड़ियाँ फूंक दी, थानों को निशाना नहीं, अभी तो हम अपनी फोर्स को भेज रहे हैं कि भाई अगर कहीं कोई लोग घिरे हुए हैं या लोगों को रोका गया है तो वहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। साहब, सिविल हॉस्पिटल्स को भी जो है वो रखा गया है, अगर किसी को चोट पीटा है तो उन्हें भी? सीएमओ पलवल को भी मैंने कहा है कि वो बिल्कुल पूरी तरह से अगर कोई जख्मी वहाँ पर कुछ लोग आए हैं तो बता रहे हैं तो उनके ऊपर इमीडिएटली मेडिकल हेल्प दी जाए और कुछ लोगों को नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में भी शिफ्ट किया गया। मेरा लोगों से यही अपील है कि शांति कायम रखें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें और आपस में भाईचारा बनाएं। गृह मंत्री कह रहे हैं कि हमने पर्याप्त जो है बल तैनात किया है दूर। वही मैं कह रहा हूँ, अब पर्याप्त उन्हें भेजा होगा लेकिन पहले जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं है जो मैंने सुना है। मेवात में, मानेसर में और गुड़गांव में जिस प्रकार से बेहिसाब और बेइंतहाशा हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ और चोटों की खबरें आ रही हैं, ये अपने आप में दिल दहलाने वाला भी है और अत्यंत चिंताजनक भी। ये सीधे सीधे कानून व्यवस्था का फेलियर है, खट्टर सरकार की नाकामी का नतीजा है। हरियाणा को पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जातीय हिंसा में धकेला था और वो आग वर्षों तक धधकती रही। अब जैसे ही चुनाव नजदीक आ रहा है, हरियाणा को धार्मिक हिंसा के अंदर धकेला जा रहा है। बताइए क्या कारण है कि हमारे हरियाणा में, शांति प्रिय हरियाणा में 75 वर्षों में देश की आजादी के बाद कभी धार्मिक दंगे नहीं हुए। पहली बार धार्मिक दंगे हुए, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे। कहां है मुख्यमंत्री? कब मुख्यमंत्री आकर स्थिति को खुद संभालेंगे? ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और बड़ी पीड़ादायक है। इस अवसर पे मैं प्रत्येक प्रदेशवासी से हाथ जोड़कर यही आग्रह करता हूं कि आपसी भाईचारा बिगड़ने ना दें। हर हालत में आपसी अमन, चैन, शांति और सद्भाव, भाईचारा कायम रखें। प्रत्येक प्रदेशवासी से मैं इस अवसर पे यही सबसे अपील करता हूँ। ये सारे जांच के विषय हैं। अभी जो है हर हाल में आपसी अमन, चैन, भाईचारा, सद्भाव बना रहे। मैं प्रत्येक प्रदेशवासी से हाथ जोड़ के यही अपील करना चाहता हूँ। और उसके बाद जो ये जो है इस पे आने वाले समय में जांच का विषय होगा कि ये हालात कैसे बिगड़े, वो बात हम एक बार जब शांति का माहौल बन जाएगा तब करेंगे। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਨੇ। ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, SMS ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ। जिस तरीके की हिंसा दो धार्मिक भाईचारिਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈ है तो सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि चोणां तो पहला बीजेपी की सरकार इस तरीके के दंगे भड़काउण की कोशिश कर रही है। दूसरे पासे बीजेपी के आगू थोड़ा समा पहला जुड़े सी जो कांग्रेस से इस तरीके के इल्जाम लगाते नजर आ रहे सी। हरियाणा दे विच इस वेले टेंशन है, माहौल इस वेले तनावपूर्ण बनया होया है। ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ है, इंटरनेट SMS सर्विस बंद है।
ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੈਨਾਤ ਹੈ। ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ जुड़े ने, हरियाणा बीजेपी ਦੇ आगू ने। संजय शर्मा जी, स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब से। जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है हरियाणा में, जो हम तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं, अभी फिलहाल बातचीत दोनों जो पक्ष हैं उनमें करवाने की कोशिश हो रही है। अभी की स्थिति क्या है, किस तरीके से सरकार निपटने के लिए काम कर रही है? देखिए अर्शदीप, जो कल की घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें जो भी जान माल की क्षति हुई है अपूरणीय है। जिन लोगों ने भी किया है, सरकार उनको आइडेंटिफाई कर रही है, प्रशासन उनको आइडेंटिफाई कर रहा है और जिन लोगों ने भी इस घटना को अंजाम दिया या जिन्होंने भी इसको एक सांप्रदायिक रंग दे करके और सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हैं, चाहे वो उपद्रवी तत्व हैं, चाहे आम लोग हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को जिसने ये काम किया उसको बख्शा नहीं जाएगा और कानून के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस आप पर ही इल्जाम लगा रही है। रणदीप सुरजेवाला का बयान आया है जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हरियाणा में ऐसी घटना कभी भी नहीं हुई, पहले कभी नहीं देखने को मिली और अब बीजेपी चुनाव के समय इस तरीके की कोशिश कर रही है कि दो जो धर्म है उनके बीच दंगे भड़काए जा सके। देखिए, जो विरोधी दल होते हैं वो तो सरकार के ऊपर या सत्ता पक्ष पे आरोप लगाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो ये उपदेश देने का अधिकार भी नहीं, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास उठा करके देख ले कि जहाँ जहाँ भी उनकी सरकारें रही हैं हमेशा वहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। बहुत से घटनाक्रम ऐसे हैं, चाहे हरियाणा की बात भी करेंगे तो कांग्रेस के शासन में हमेशा हर साल में ऐसा होता था। हरियाणा में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुई है तो बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण है, सब लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं, ऐसा कोई दंगे वाली स्थिति या कुछ नहीं। हाँ, कुछ लोग इस तरह का प्रयास करते हैं करने का और उसमें कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस समय इन राजनीतिक दलों को भी ऐसे मौके पर, अब वहाँ जो हर साल एक मेला होता है, एक मंदिर में श्रद्धालु जाते हैं, वहाँ यात्रा भी निकलती है, तो इस समय चुनावी साल के अंदर इस तरह का घटनाक्रम होना तो कहीं ना कहीं ऐसे सब लोग जो आरोप लगा रहे हैं उनकी भूमिका को भी दर्शाता है कि उनके जो वहाँ पर रहने वाले कार्यकर्ता हैं या उनकी पार्टी से बने हुए जो विधायक हैं उनकी भूमिका क्या है, उसकी तरफ भी हमें देखना चाहिए कि उनका क्या रोल है इस सब में। और वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि किन लोगों ने इसके पीछे किनका हाथ रहा है, किन लोगों ने इसमें उकसाने का काम किया, किन लोगों ने इसमें ये उपद्रव फैलाने का काम किया, वो सारा देखेंगे और उससे उचित कार्रवाई भी पर की जाएगी। हमारे सहयोगी थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि ये जो यात्रा निकाली गई है इसकी इंटीमेशन पुलिस को 6 महीने पहले दे दी गई थी। सुरक्षा के इंतजामों के बारे में भी कहा गया था, लेकिन क्या उस तरीके के इंतजाम नहीं थे? क्योंकि जिस तरीके से नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराए गए हैं, जिनमें से एक ब्रॉड डेड का उसकी शनाख्त अभी हो रही है और 3 पुलिस कर्मचारी जिनको की गोली लगी है उनको वेंटिलेटर पर रखा गया है और एम्बुलेंस बिल्कुल स्टैंड बाई रखी गई है कि अगर कहीं शिफ्ट करना होगा तो हम उनको शिफ्ट करेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सी जो कह रहे हैं कि हर तरीके के प्रबंध किए गए हैं, जे किते लोग फसे हुए हैं तो उन्होंने कढ़िया भी जा रहा है। एंबूलेंसेस तैनात की गई ने, फोर्सेस तैनात की गई ने। हालात कह रहे हैं कि काबू दे विच ने, शांति बहाल करने की कोशिश उत्थे हो रही है। जिवें मेरे सहयोगी जानकारी दे रहे सी कि मीटिंग भी दोवां भाईचारिਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। 2 ਹੋਮਗਾਰਡ ਦੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 10 ਤੋਂ 15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ।